Hello everybody. Today's topic is polynomial, chapter 2 NCERT. Suppose x plus 1 एक polynomial है. x का वैल्यू क्या होने से इस polynomial का वैल्यू 0 होगा? Obviously x का वैल्यू -1 होने से इस polynomial का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं रूट यानी कि 0. ओके अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें सो दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, सो -1 इज ओवर हियर. ओके सो दिस इज नोन एज द रूट. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके लिए इसका एटमोस्ट 1 रूट ही निकल सकता है. लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता सो इसका ऑब्वियसली 2 रूट निकलता, मतलब एक्स एक्सिस में हम लोगों को 2 पॉइंट मिल जाता. सो जितना एक्स एक्सिस में पॉइंट मिलेगा उतना रूट होगा, यानी कि उतना जीरोस होगा एक पॉलिनोमियल का. आइए चलते हैं आप एक्सरसाइज 2.1 का तरफ. सी द क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और हर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कितना रूट है उसको बाहर निकालने के लिए बोला गया है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कोई भी इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस में नहीं है. ओके एक्स एक्सिस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है. सो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोस बाय नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. आंसर हो गया. नेक्स्ट एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेक्शन है? ओनली 1 इंटरसेक्शन, सो द रूट इज 1. यहाँ पे कितना इंटरसेक्शन है? 1, 2 and 3, so 3. How many intersection is there? Only 2, so 2 roots are possible. Here 1, 2, 3 and 4, so 4 roots are possible. Here 1, 2, 3, so 3 roots are possible. Now let us learn some concept regarding exercise 2.2. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. ये quadratic equation है, यानी कि इसका 2 रूट निकल सकता है. सो रूट 1 एंड रूट 2. ओके रूट 2 को हम लोग अल्फा मानेंगे और रूट 2 को हम लोग बीटा मानेंगे. नाउ वी हैव टू लर्न वन रूल, दैट इज सम ऑफ zeros. Sum of zeros means first 0 is alpha and second 0 is beta. So alpha plus beta equals minus b by a. What is minus b actually? That is the coefficient of x. So minus coefficient of x and divided by coefficient of x square. That is the relationship between zeros and coefficient of this quadratic equation. And rule number 2 is product of zeros, that means alpha multiplied by beta is equal to c divided by a. So what is c actually? That is constant term. So equals constant term divided by a. What is a? That is the coefficient of x square. So this is what the relationship between the coefficient and zeros of the polynomial. So again I am repeating this rule. Sum of zeros, that means alpha plus beta, equals minus b by a. Minus b means this one and a means coefficient of x square. Product of zeros, that means alpha multiplied by beta is equal to constant term divided by the coefficient of x square. If you understand this concept, then the exercise 2.2 will be very easier for you. Let us solve exercise 2.2. Question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomial. So we have to find the zeros of this particular quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Already we have learned the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. So we will apply that particular concept. But before that, we have to find the zeros of this particular polynomial. So let us solve the first question, that equals 0. So x square, अगर हम लोगों को ये सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट. सो 8 का फैक्टर निकालना पड़ेगा. सो 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2. द साइन इज माइनस. सो यहाँ से क्लियर है 2 2 4. 4 से अगर 2 को माइनस करेंगे सो ऑब्वियसली 2 आएगा. सो माइनस 4 minus 2 x minus 8 equals 0. Now x square minus this 4 and x will be multiplied, so 4x, this minus and minus, so plus 2x and minus 8 equals 0. So let us take the common x, so x minus 4 and take the common from this 2, so 2x minus 4 equals 0.
Now take the common x minus 4 from here. So x minus 4 and x plus 2 equals 0. Now let us calculate the value of x. X minus 4 equals 0. So x equals plus 4. That is the one root already we have got, and another root x plus 2 equals 0. So x equals minus 2. So already we have got two zeros, that is 4 and minus 2. So let us write down alpha equals 4 and beta equals minus 2. Now they are asking to verify. Let us verify. So alpha plus beta equals minus b by a. So from this equation, what is the coefficient of x square? Nothing is there, that means 1. So let us write down a equals 1. Then what is the value of b? That is minus 2. So b equals minus 2. और c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है minus 8. So let us write it down. c equals minus 8. Now from this equation, separate this LHS and RHS. Okay. So let us write it down. LHS equals alpha plus beta. So what is the value of the alpha? Already we have calculated the value of alpha is 4 and beta is minus 2. So let us put that value. So alpha is plus 4 and beta is minus 2. So plus minus 2. That means 4 minus 2. So 2 is the result. Now let us calculate this RHS. So RHS equals minus b by a. Now what is the value of b? Actually minus 2. So minus 2 and a is 1. So put 1 over there. So minus 2. That means it will become plus 2. So LHS equals RHS equals 2. Verified. बिल्कुल इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे. लास्ट हम लोगों को रिलेशनशिप जो प्रूव करना है वो है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. सो लेट अस राइट डाउन द एलएचएस इक्वल्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा. अल्फा का वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज 4 and beta का वैल्यू that is minus 2. So minus 2. So 4 2s are 8. So minus 8. Now RHS, that means C by A. So RHS equals C by A. Now what is the value of C? Let us see. C का वैल्यू minus 8 है और A का वैल्यू 1 है. So minus 8 by 1, that means minus 8. LHS equals RHS equals minus 8. Verified. मतलब दोनों को ही हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ उसका कोएफिशिएंट का जो रूल्स है उसका साथ इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं. दैट इज़ 4u स्क्वायर प्लस 8u. नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं. नाउ टेक द कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दिस टर्म, दैट इज़ 4u. सो लेफ्ट साइड में सिर्फ u है और राइट साइड में 4 2s are 8 और u तो ऑलरेडी कॉमन हम लोग ले लिए हैं. सो इक्वल्स 0. तो इसका ज़ीरोस क्या होगा? 4u इक्वल्स 0. सो u equals 0 by 4, that means 0. And another one is u plus 2 is equals 0. So u equals minus 2. So इसका basically alpha है 0 and beta है minus 2. Now let us write the coefficient of this. So this is a, so a equals 4, b equals 8 and c का कोई वैल्यू नहीं है, that means c equals 0. Now alpha plus beta equals minus b by a. So LHS equals alpha plus beta equals 0 plus minus 2, so minus 2. And RHS equals minus b by a. So let us write down minus b by a. So what is the value of b? That is 8. So minus 8 divided by a, that means 4. So 4 1s are 4 2s are 8. So minus 2. So LHS equals RHS equals minus 2. Verified. Next rule is alpha multiplied by beta equals c by a. So let us write down the same thing. LHS equal to
alpha multiplied by beta. So the value of alpha is 0 and beta is -2. So 0 multiplied by -2 equals 0. And let us write down RHS equals C by A. So what is the value of the C? C का value है 0. So बिठाओ 0 और A का value है 4. So 0 by 4 that means 0. So LHS equals RHS equals 0. Verified. Now क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा दिक्कत होता है सब लोगों का. सो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स 0. सो टी होल स्क्वायर माइनस 15. नाउ 15 को होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें? हम लोग तो जानते हैं रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई रूट 15 इज इक्वल टू 15. सो हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 15 होल स्क्वायर, isn't it? So let us make this as root over of 15 whole square equals 0. That means a square minus b square का फॉर्मूला में आएगा. So a plus b root over of 15 and a minus root over of 15, a minus b equals 0. So first root क्या होगा? t plus root over of 15 equals 0. So t equals minus रूट ओवर ऑफ 15 और यहाँ पे t माइनस रूट ओवर ऑफ 15 इक्वल्स 0. सो t इक्वल्स प्लस रूट ओवर ऑफ 15. सो अल्फा इक्वल्स माइनस रूट ओवर ऑफ 15 एंड बीटा इक्वल्स प्लस रूट ओवर ऑफ 15. Write down the values of the coefficient from here. So this is t square, so nothing is there, that means 1. So a equals 1. Now b, there is no any b, so b equals 0. And c is there, that is minus 15. So let us write down minus 15 over here. Now according to our rule, alpha plus beta is equal to minus b by a. So LHS alpha plus beta equals alpha का value minus root 15, so minus root 15, and beta का value है plus root 15, so plus root 15. So this plus and minus will be cancelled and the value will be 0. So what is the RHS value? That is minus b by a. What is the value of b actually? That is 0. So minus 0. Minus 0 means that will become 0 also. Next a, what is the value of a? That is 1. So minus 0 by 1, that means 0. So LHS equals RHS equals 0. Verified. Next proof another rule, that is alpha beta is equal to minus root over of 15 multiplied by plus root over of 15. So what will be the value? That is minus 15. And obviously we have to write down the rule. So alpha beta equals c by a, and this one must be LHS. So RHS equals c by a. Now what is the value of the c? We have to check. Value of the c is minus 15 and a is 1. So minus 15 by 1. So what will be the value? That is minus 15. So LHS is equal to RHS is equal to minus 15, and this is also verified. Now this question is very easy. अगर नहीं हुआ तो obviously message करना. Now question number 2. Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros are given respectively. Okay, that means alpha plus beta they have given, that is 1 by 4, and they have also given alpha multiplied by beta, that means product, that is minus 1. हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, isn't it? So write down the value, that is 1 by 4. Let us write down another rule, that is alpha multiplied by beta equals c by a. As per our rule, इसका वैल्यू कितना है? माइनस 1. सो माइनस 1 मतलब इसका नीचे हम लोग 1 तो पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर उसका नीचे तो 1 रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट. देखो यहाँ पे a का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, एक 4 और एक 1, isn't it? सो हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का हम लोगों का रूल क्या था, जो क्लास 4 से या क्लास 5 में हम लोग सीखे हैं. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, यानी कि लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगा. तो इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका 4. सो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या हो जाएगा ऊपर में -4 डिवाइडेड बाई 4. अभी देखो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है. नाउ वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ b.
So actually minus b, that means that is 1. So let us write down minus b equals 1. That means what is the value of b? So माइनस को यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे लगा दो, सो b इक्वल्स -1, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते ही हैं कि माइनस b इक्वल्स 1 अगर होगा, सो माइनस b का साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 1 का साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, सो ये वाला हो जाएगा प्लस b और ये वाला हो जाएगा -1. ओके, दैट इज़ वाई आई हैव डन दिस. एंड मुझे b का वैल्यू चाहिए था, माइनस b का वैल्यू नहीं. और a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू तो 4 है, एकदम इजी. सो a का वैल्यू 4 एंड नेक्स्ट वन इज c. अभी देखो a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, तो उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. c का वैल्यू क्या है? -4. सो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ c, दैट इज़ -4. सो व्हाट इज़ माई आंसर? माई आंसर इज़ b इक्वल्स -1, a इक्वल्स 4 एंड c इक्वल्स -4. सो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस सी. सो a का जगह में वैल्यू बिठा दो, दैट मीन्स 4x², -1 है b का वैल्यू, सो -x एंड c का वैल्यू है -4, सो -4. दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a इक्वल्स √2. अब √2 मतलब उसका नीचे तो हम लोग 1 लिख ही सकते हैं, तो लिख दो. नेक्स्ट, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा मतलब प्रोडक्ट equals c/a. Next, write down the value, that is 1/3. Now try to understand. इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, मतलब इसको लाइक रैशनल नंबर यानी कि लाइक फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट इज़ 3√2 एंड डिनोमिनेटर इज़ 3. अब इस दो फ्रैक्शन को चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है. सो लेट अस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ b. अभी थोड़ा माइन्यूटली देखना, -b इक्वल्स 3√2. तो इसके लिखने का तरीका होता है -b इक्वल्स 3√2, मतलब प्लस b का वैल्यू हम लोगों को जो चाहिए, सो -3√2 हो जाएगा. और a का वैल्यू तो हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है, दैट इज़ 3 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा? 1. सो लेट अस राइट डाउन द वैल्यूज. सो b इक्वल्स -3√2, a इक्वल्स 3 एंड c इक्वल्स 1. दैट इज़ योर आंसर. इतना ही ईजी है, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला तरीका थोड़ा सा आना चाहिए. फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² प्लस bx प्लस c. सो a का जगह में वैल्यू बिठाओ, दैट मीन्स 3x², सो -3√2x, और c का वैल्यू है 1, सो +1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a इक्वल्स 0. जैसा है वैसा ही लिख दो, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स c/a इक्वल्स √5. सो √5 मतलब √5/1, और 0 मतलब 0/1, क्योंकि कोई भी नंबर है उसका नीचे डिनोमिनेटर 1 ही होता है. सो अभी देखो ये तो लाइक फ्रैक्शन में है, तो चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो मेरा आंसर क्या होगा? -b इक्वल टू 0, सो b इक्वल 0, क्योंकि 0 का कोई सिंबल चेंजेस नहीं होता है. नेक्स्ट, c इक्वल्स √5 and a equals 1. So quadratic polynomial is ax² plus bx plus c. So a का जगह में वैल्यू बैठेगा 1, so x² plus b का जगह में 0x, that means 0 will come, and c का जगह में बैठेगा प्लस √5. सो एक्चुअली में इसका आंसर होगा x² प्लस √5. क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा. फिर से वही रूल हम लोगों को लिखना है, बार बार एक ही चीज़, -b/a इक्वल्स 1. सो 1 मतलब नीचे 1 हम लोग पकड़ लेंगे, और फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स अगेन c/a, सो 1, सो नीचे 1. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाला है, -b इक्वल्स 1, क्योंकि ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है. सो लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों को कोई भी चेंजेस, कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ नहीं करना है. सो -b इक्वल्स 1 ये एक कैच है, दैट मीन्स -b इक्वल्स 1. सो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए b का, सो ये माइनस यहाँ पे जाके लग जाएगा, दैट मीन्स b इक्वल्स -1. सो लेट अस राइट डाउन द वैल्यू. b इक्वल्स -1,
ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू है 1, दोनों जगह में ही सेम है तो हम लिख ही सकते हैं, और सी का वैल्यू क्या है 1, दैट इज़ योर आंसर। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ए का जगह में वैल्यू बैठाओ, दैट मीन्स 1 एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर, बी का जगह में -1, सो -x, और सी का जगह में 1, सो 1। So this is your polynomial for question number 4. Question number 5 एकदम easy, alpha plus beta equals minus b by a equals -1 by 4, and alpha multiplied by beta equals c by a equals 1 by 4. Question number 6, so alpha plus beta सेम चीज़ है, minus b by a 4, तो नीचे हम लोग जानते हैं 4 मतलब नीचे 1 है। नेक्स्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स सी बाय ए इक्वल्स 1, सो 1 मतलब उसका नीचे 1। तो देखो ये भी एक लाइक है, ये भी एक लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों का ही डिनोमिनेटर 1 है, तो कोई कन्वर्शन का ज़रूरत नहीं, सिंपल लिख दो -b इज इक्वल टू 4, सो b इक्वल्स -4। a का वैल्यू बिठाओ, दैट मीन्स दैट इज़ 1, b का वैल्यू दैट मीन्स -4, सो c इक्वल्स 1। तो तुम्हारा लिनियर इक्वेशन क्या होगा, फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो a का वैल्यू बिठाओ 1x स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू -4, सो माइनस हो जाएगा -4x, प्लस c का वैल्यू है 1, सो +1। दिस इज़ योर आंसर। एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग सारे मैथ को मोर और लेस सॉल्व किए हैं, तुम लोग घर पे कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।